चलो फिर करें कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो 2 मिनट में अपन फॉर्मूले का रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर के, एंड देन विल कंटिन्यू द न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, कोई गवर्नमेंट आए कुछ भी आए, अपना घर अपने को ही चलाना है। समझ रहे हैं ना? अपने लिए पैसे अपने को ही कमाना है, अपना फ्यूचर अपने को ही सिक्योर करना है। या 5 किलो राशन की कैटेगरी में जाना है अपने को? नहीं ना? या जाना है उसमें? नहीं ना? ओके, चलो फिर करें कंटिन्यू हम लोग। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ लाइन? लाइन मतलब क्या? लाइन इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स satisfying the given linear equation. What is standard format of a linear equation? Ax plus by plus c is equal to 0 is the standard format of a linear equation. What is the formula for slope of the line? Minus a by b. So if equation is in the form of ax plus by plus c is equal to 0, slope is minus a by b. And देखो ये फॉर्मूला में, स्लोप के फॉर्मूला में कहीं पे c है ही नहीं, माइनस ए बाई बी। मतलब कल जाके x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 है, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 है, स्लोप तो सेम ही रहेगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 80 रहने दो, 100 रहने दो, कुछ भी रहने दो सामने, स्लोप इज गोइंग टू बी माइनस 2/3 और नॉट। तो कांस्टेंट चेंज होने से सिर्फ क्या चेंज होता है? पोजीशन। स्लोप चेंज नहीं होता है। स्लोप इज डिपेंडेंट ऑन a and b. Minus a by b is the formula for slope. Is the formula for slope. So what is the slope of the line? Ax plus by plus c is equal to 0 minus a by b. But if the same equation is written in the form of y is equal to mx plus c, m represents slope of the line. If same equation is written in the form of y is equal to mx plus c, m represents slope of the line. I hope you are getting my friends. What is the meaning of line? Line का definition अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने। Line is a set or collection of infinite points satisfying the given linear equation. When two lines are said to be parallel to each other, if m1 is slope of one line, m2 is slope of other line, then lines are said to be parallel if m1 is equal to m2. If m1 is equal to m2, slope of first line is equal to slope of second line. ऐसा रहा तो lines are said to be parallel to each other. Slope of first line is equal to slope of second line. ऐसा रहा तो lines are said to be parallel to each other. Slope of the line का फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला है स्लोप ऑफ द लाइन का? माइनस a by b. Inequalities representing first quadrant are x is greater than 0, y is greater than 0. Inequalities representing second quadrant are x is less than 0, y is greater than 0. Third quadrant, x is less than 0, y is less than 0. Fourth quadrant, x is greater than 0, y is less than 0. Equation of x axis is y is equal to 0. Equation of y axis is slope of x axis is 0. Slope of y axis is not defined. टेबल बना के दिया था कल। Slope of x axis is 0. Slope of y axis is not defined. रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अपन फॉर्मूला यूज किए तो भी आंसर आता है। डिवाइडेड बाय 0 आया मतलब नॉट डिफाइंड, एंड 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आया मतलब 0। तो स्लोप ऑफ, सुनो अच्छे से सेंटेंस, स्लोप ऑफ x axis and all the lines parallel to x axis is 0. Slope of y axis and all the lines parallel to y axis is not defined. Is not defined. If the line is x is equal to constant, x is equal to 30, x is equal to 50, x is equal to 90, it is a parallel line to y axis. And if the equation of the line is y is equal to constant, y is equal to 100, y is equal to 200, y is equal to minus 30, y is equal to 1/2, कुछ भी रहने दो, y is equal to constant, it is a parallel line to x axis. And x axis को parallel है मतलब उसका slope 0, y axis को parallel है मतलब उसका slope undefined.
y को पैरेलल है मतलब उसका स्लोप अनडिफाइंड, याद रहने का चांस है बच्चों। यस, चलो करें कंटिन्यू, हम लोग करें कंटिन्यू। चलो पॉइंट नंबर 31 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करते, चलेगा बच्चों? पॉइंट नंबर 31 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करते। तो क्या था ये पॉइंट नंबर 31? बोलो। फाइंड, ये 30 हुआ था क्या कल? फाइंड एनी 2 पॉइंट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है बताओ? 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 100। अच्छा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले आप कितने पॉइंट्स बता सकते हो मुझे? इनफाइनाइट। लिखो मत, वेट करो। इनफाइनाइट, बट मैं सिर्फ 2 पॉइंट लिखता हूं। मैं जो लिख रहा हूं वो करेक्ट है क्या बताओ, एंड आप वो ही लिखना प्लीज, चलेगा क्या बच्चों? लगे तो आप मुझे बताओ, ऐसे कुछ नहीं, करोड़ों पॉइंट है, आप मुझे सिर्फ 2 बताओ। हाँ बोलो। 2 पॉइंट्स, ऐसे लिख देता हूं, आप भी लिखो इतना। 2 पॉइंट्स satisfying the equation 7x minus 3y is equal to 100 are, चलो बोलो, 100, 200। आर यू श्योर? चेक करो एक बार। 100, 200, 7 इंटू 100 कितना आता है? 700 माइनस 3 इंटू 200 600, 700 माइनस 600 100, टैली हुआ, करेक्ट है। और एक पॉइंट तुम ही बताओ। ओके, 10 माइनस 10। अच्छा, ये मैंने अपने मर्जी से पॉइंट लिखी है, आपने बोले वो इज्जत से कॉपी कर दिए? आपने जो बोला वही लिया ना मैंने, कोई मेरी मर्जी से पॉइंट तो नहीं लिया मैंने। अच्छा, यही 2 पॉइंट है क्या सिर्फ लाइन पे? इस लाइन पे करोड़ों पॉइंट है, बट इस दोनों पॉइंट में से जाने वाला लाइन ड्रॉ कर दिया तो वैसे भी बाकी के सारे पॉइंट उस लाइन पे रहेंगे ही, बिकॉज लाइन इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाइंग द गिवन लीनियर इक्वेशन। समझा क्या बच्चों? तो इक्वेशन था 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 100, आपने मुझे 2 पॉइंट बता दिए। समझा क्या? यस और नो? ओके, समझो मैंने आपको क्वेश्चन, अभी कुछ मत लिखो बच्चों, यहां तक लिखे आप लोग? ओके, समझो मैं आपको क्वेश्चन पूछा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 100, 200 एंड दूसरा पॉइंट 10, माइनस 10। अब बता बच्चों, अगर ये ऊपर का क्वेश्चन होता नहीं एंड डायरेक्टली मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता, डायरेक्टली फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 100, 200 100, 200 एंड दूसरा पॉइंट 10, माइनस 10, ये पूछता, तो आप आंसर बता पाते क्या मुझे? ईमानदारी से बताओ, आप आंसर बता पाते क्या मुझे? अगर मैं आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 100, 200 एंड दूसरा 10, माइनस 10। अब लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, लिखो ना अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स बोलो? 100, 200 100, 200 एंड कौन सा बोलो? 10, माइनस 10। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। अच्छा बताओ, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 100। बड़ा मुझे बता, अगर मैं ईमानदारी से बता यही क्वेश्चन पूछता आपको और ऊपर का क्वेश्चन होता ही नहीं, तो आप आंसर दे पाते क्या? आप बोलते कि सर इक्वेशन के बेसिस पे पॉइंट्स बता सकते हैं हम लोग, बट पॉइंट के बेसिस पे वापस इक्वेशन कैसे बताए? ज्यादा से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते थे। नहीं समझा आपको? अगर मैं ऑप्शन दिया होता तो ऑप्शन चूज कर लेते आप। कैसे? आप वो इक्वेशन ढूंढ के निकालते जो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू 200, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू माइनस 10, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, बट ऑप्शन भी नहीं है। अगर मैंने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, हमारे पास अभी तक तो कोई ऐसा मेथड नहीं है, बट वो मेथड अपन फाइंड करेंगे। चलेगा क्या बच्चों? चलेगा क्या? ओके, सुनो ध्यान से अभी। ओके, समझो, पहले अपन एक काम करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में मत सोचेंगे, अपन ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे पहले। चलेगा क्या? नोबडी इज गोइंग टू आस्क डेरिवेशन इन द क्लास, इन द एग्जाम, बट अपन उतना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं खुद का। सपोज ये एक इक्वेशन है, ओके, ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। जिसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब उसका स्लोप क्या है? m। इस लाइन पे मान लो 2 पॉइंट है, समझो एक पहला पॉइंट है x1 y1, तो x1 y1 मतलब एक्चुअली उसकी जगह नंबर्स रहेंगे, समझा ना बच्चों? एंड दूसरा क्या है? x2 y2। मैंने यहां पे x2 y2 लिखा है, रियल लाइफ में तो नंबर्स आएंगे ना उसकी जगह पे,
तो समझो क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। क्वेश्चन क्या है, समझा क्या? क्या क्वेश्चन है बोलो, क्या क्वेश्चन है बोलो? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स? x1, y1 एंड x2, y2। अगर अपन ये इक्वेशन डिराइव कर पाए बच्चों तो अपना काम हो जाएगा क्या? फिर अगर हम ये फाइंड कर पाएंगे तो बाद में x1 y1 एंड x2 y2 की जगह एक्चुअल में नंबर्स आएंगे, फिर अपन सॉल्व कर पाएंगे क्या? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ये क्वेश्चन है ना मेरे भाई, यस और नो? यस। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स है। इज दैट क्लियर? जस्ट 2 मिनट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगला पॉइंट देखो अभी 33। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। दिख रहा है क्या आपको? आपको मैंने बोला कुछ मत लिखो, ध्यान दो सिर्फ यहां पे। अगला क्वेश्चन क्या है बोलो? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। कौन से पॉइंट्स है? x1 y1 एंड x2 y2। समझा क्या? पढ़ो, आंसर पढ़ो। लेट y is equal to mx plus c be the equation of the line passing through x1 y1 and x2 y2। तो मान लो कि ये लाइन है y is equal to mx plus c। तुम्हारा ध्यान है क्या भाई? अच्छा, इस लाइन पे 2 पॉइंट्स कौन से है बोलो? पहला पॉइंट क्या है? x1, y1 और एक पॉइंट है इस पे, क्या है वो? x2, y2। ध्यान है क्या सबका? अब बताओ x1 y1 एंड x2 y2 उस लाइन पे है, इसका मतलब हुआ इफ आई पुट x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1 दैट इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। अच्छा मुझे बता x1 y1 की जगह 3,5 होता, तो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5 दैट इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड और नॉट? तो x1 y1 x2 y2 क्या है? ये नंबर्स ही है मेरे भाई, समझा या नहीं? तो बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 x2 y2? y इज इक्वल टू mx प्लस c। ऐसा इधर उधर देख के कुछ नहीं होता है मेरे भाई, ये बनना है अपने को। समझता है क्या अपने को? अगर अपने को दुनिया से आगे रहना है, दुनिया से 4 कदम आगे रहना है, उनसे अच्छा स्टेटस कमाना है, उनसे अच्छा पैसा कमाना है, तो अपन ऐसा इधर उधर मुंह मार के नहीं चलता है। समझता है? ध्यान देना पड़ता है। ओके, अपने एफर्ट्स ऑर्डिनरी से भी नीचे, लेकिन अपने को रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए। वो सपनों में होता है सिर्फ, रियलिटी में होता नहीं है, एंड मोटिवेशनल स्पीच में होता है सिर्फ। समझ रहा है क्या? रियलिटी में होता नहीं है। रियलिटी में एफर्ट्स काम करते हैं, प्रिपरेशन काम करता है, मोटिवेशन नहीं। क्या काम करता है? प्रिपरेशन, प्रोसेस काम करता है। समझा या नहीं? यस और नो? क्या काम नहीं करता है? सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं करता है, मोटिवेशन सिर्फ एंड पॉइंट रहता है। समझा या नहीं? ओके चलो, x ये जो लाइन है उसका क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। उसमें 2 पॉइंट कौन से है? x1 y1 x2 y2। तो आप बताओ, एज पॉइंट x1 y1 इज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, इफ आई पुट x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1 दैट इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस c में ना बच्चों x की जगह x1 लिखा, y की जगह y1, तो ये इक्वेशन बनेगा क्या? नहीं समझा आपको? एंड उस लाइन पे और एक पॉइंट है, कौन सा बोलो? x2 y2। तो आप मुझे बता, अगर वो इक्वेशन में x की जगह x2 एंड y की जगह y2 लिखा तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं? तो ये 3 इक्वेशन आपके सामने दिख रहे हैं क्या? फिर मैंने क्या किया? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया। क्या किया? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड डिडक्ट, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिडक्ट। तो क्या आया बताओ, करो। y माइनस y1, जरा देखो अच्छे से, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सही किया है क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx प्लस c माइनस mx1 माइनस c। c एंड माइनस c कैंसिल हुआ क्या? क्या आया बोलो फिर? y माइनस y1 इज इक्वल टू m कॉमन, ब्रैकेट में क्या? x माइनस x1। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या आया? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। इसको हमने इक्वेशन 4 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, देख रहे हो क्या आप? इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 दिख रहा है क्या आप? बोलो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 क्या आएगा बोलो? y2 माइनस y1 इज इक्वल टू mx2 प्लस c माइनस mx1 माइनस c। c एंड माइनस c कैंसिल हुआ क्या? m कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आया? x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू क्या आया? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 का लेफ्ट हैंड साइड m है क्या? तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा क्या? तो क्या रहा? इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 देखते हुए, हाँ बोलो,
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। फिर मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड का y माइनस y1 लेफ्ट में आके डिवाइड कर दिया, एंड लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर था x2 माइनस x1 वो राइट में भेज दिया। तो क्या इक्वेशन बना, हाँ बोलो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x माइनस, ये क्या है बताओ, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट बोलो, x1 y1 एंड x2 y2। दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, बोलो x1 y1 एंड x2 y2। इज दैट क्लियर? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। कुछ जा रहा है कि दिमाग में? जहां पे x1 y1 x2 y2 ये दो पॉइंट्स है, मतलब x1 y1 x2 y2 ये नंबर्स आएंगे कि नहीं? अब बताओ, अभी वापस पे क्वेश्चन पे आते हैं। आप मुझे बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 100, 200 एंड 10, -10। अगर ये क्वेश्चन होता तो आप मुझे बताओ, ऊपर का इक्वेशन तो आप भूल चुके हो कि नहीं? क्या था आंसर, फिर भी देख के बताओ मुझे। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 100। वो आंसर आया तो ही हम करेक्ट है। तो अब बताओ, ये जो पहला पॉइंट है ना, आप मान लो कि ये पॉइंट है, बोलो x1 y1, एंड ये दूसरा पॉइंट है ना, मान लो ये है x2 y2। तो बोलो x1 कितना है इस क्वेश्चन में, 100, x2 कितना है 10, x2 10, y1 कितना है 200, y2 -10। चलो ये पूरे इक्वेशन अपन याद ही कर लेते, चलेगा क्या? अगर मैं इसके बाद में कभी भी क्वेश्चन पूछा व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2, इसके नीचे का जो मैंने प्रूफ दिया था वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था, समझा क्या? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। इसको साइड चेंज करके कुछ और बनाना है, बना सकते हो आप, समझा है नहीं? अपन याद ये रखेंगे, साइड चेंज करके और भी कुछ बना सकते हैं कि नहीं? इसका याद क्या रखेंगे वो बताओ। तो नहीं, पूरा बोल, ये क्या है वो भी बोलने का नहीं, बाद में आंसर याद रहता है, क्वेश्चन याद नहीं रहता। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 is y2 minus y1 divided by y minus y1 is equal to x2 minus x1 divided by x minus x1। सही है बच्चों? तो चलो बताओ, इस क्वेश्चन के में y2 कितना था, -10, माइनस y1 कितना था 200 डिवाइडेड बाय y माइनस 200। सही है क्या बताओ? y तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू, चलो x2 माइनस x1 बताओ, 10 माइनस 100 डिवाइडेड बाय x माइनस 100। यहां तक समझा क्या बताओ? हाँ चलो बोलो, ये कितना था, -210 डिवाइडेड बाय y माइनस 200 इज इक्वल टू -90 डिवाइडेड बाय x माइनस 100। तो आप बताओ, इज इट -210 ब्रैकेट में बोलो x माइनस 100 इज इक्वल टू -90 ब्रैकेट में y माइनस 200। तो चलो बताओ, इज इट -210x प्लस 21,000। सही है क्या बताओ आप मुझे? इज इक्वल टू बोलो -90y इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, माइनस वेट हैंग हुआ है तो ये भी शायद 400 पार सोच रहा था, हैंग हो गया अभी। भाई डिलीट भी हो गए। चलो x1 y1 एंड x2 y2 क्या है समझ रहे हैं ना आपको? हाँ चलो बोलो, y2 माइनस y1 क्या था जल्दी बताओ, -10 माइनस 200 डिवाइडेड बाय y माइनस 200 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 10 माइनस 100 डिवाइडेड बाय x माइनस 100। सही है बच्चों? चलो बोलो, इज इट -210 डिवाइडेड बाय y माइनस 200 इज इक्वल टू -90 डिवाइडेड बाय x माइनस 100। तो इज इट -210 इंटू x माइनस 100 इज इक्वल टू -90 इन ब्रैकेट y माइनस 200। वैसे y माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, बट एनीवे चलो मल्टीप्लाई करते हैं। इज इट -210x प्लस
21,000 इज इक्वल टू -90y प्लस 18,000. डू यू एग्री? वो y को इधर लेके आओ. हाँ बोलो. -210x प्लस 90y इज इक्वल टू 18,000 माइनस 21,000. कितना आता है बोलो? -3,000. तो टेल मी इज इट 210x माइनस 90y इज इक्वल टू 3,000. सही है बच्चों? यस और नो? चलो एक काम करते, दोनों साइड को 30 से डिवाइड करते. किससे? 30 से. तो बोलो क्या आएगा? 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 100. देखो ये पूरा रामायण यहां से स्टार्ट हुआ था. नहीं समझा आपको? यस और नो? तो अब बताओ, अगर मैंने आपको इक्वेशन दिया तो आप मुझे पॉइंट्स बता सकते हो क्या? पॉइंट्स दैट कैन सेटिस्फाई दैट इक्वेशन. अगर मैंने आपको 2 पॉइंट दिए तो वो पॉइंट्स में से जाने वाले लाइन का इक्वेशन पता कर सकते हैं क्या? ये मेथड है उसका. समझा क्या? एग्जाम में तुम्हारे लिए और आसान रहने वाला है क्योंकि ऑप्शन रहेंगे. नहीं समझा आपको ये? बट इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर कंसेप्ट. आर यू गेटिंग दिस? आप मुझे बताओ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2? आंसर दो. y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1. ये क्या है? इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2. ये 2 पॉइंट है जिसमें x1 y1 x2 y2 की जगह नंबर्स आएंगे. x एंड y वेरिएबल्स है. x1 y1 x2 y2 ये कांस्टेंट्स है. ये पुट करो एंड इक्वेशन लाओ. इक्वेशन बराबर 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 100 आया कि नहीं? यस और नो? आप बताओ. तो ये पॉइंट नंबर 31 में मैंने क्या पूछा था आपको? बोलो. इक्वेशन दिया था एंड ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले 2 पॉइंट पूछा था. फिर मैंने अगला क्वेश्चन क्या पूछा? बोलो. वही 2 पॉइंट लिए एंड पूछा भाई ये 2 पॉइंट में से जाने वाले लाइन का इक्वेशन बताओ. तो मेरे ख्याल से इसके पहले अपन जो पढ़े थे पॉइंट नंबर 33 पढ़ने के पहले वी वर नॉट नोइंग द इक्वेशन, बट नाउ वी नो द इक्वेशन और नॉट? यस और नो? तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स? बोलो बोलो सब लोग बताओ. y2 माइनस डिवाइडेड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x डिवाइडेड x माइनस x1. समझ रहा है क्या? अपन 4-5 बार बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपन कुछ रट्टा मार रहे हैं यार. बट क्या होता है 4-5 बार पढ़ने से वो अपना दिमाग बाय डिफॉल्ट याद कर लेता है. मतलब वो बाद में दिमाग का वो कुछ 1 KB भी यूज नहीं करता. समझ रहा है ना? वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग में चला जाता है. समझा या नहीं? जैसे जिसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, जो आदमी नया नया ड्राइविंग कर रहा है और बहुत प्रैक्टिस वाला ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, तो दोनों में फर्क क्या रहता है? दोनों उतना ही अच्छा चला रहे ऐसे समझो, बट फर्क क्या है? वो जो एक्सपीरियंस वाला है ना वो उतना अच्छा चला रहा है बट एफर्टलेसली. कुछ नहीं, गाने सुन रहा है, मस्त इधर उधर देख रहा है, बात कर रहा है, आजू बाजू से बात कर रहा है. बराबर है कि नहीं? नया ड्राइवर भी उतने अच्छे से चला रहा है बट वो क्या बोल रहा है? भाई चुप बैठ, कॉन्सेंट्रेट करने दे. समझ रहा है क्या? मतलब उसका ज्यादा मेमोरी खा रहा है ना वो ड्राइविंग ये एक्टिविटी. है या नहीं है? तो अपने को ये लेवल पे जाना रहता है कि भाई अपन एफर्टलेसली क्वेश्चन सॉल्व करते. समझा या नहीं? बराबर. ऐसा क्वेश्चन दिखा अपने को कुछ दिमाग लगता भी नहीं, बाय डिफॉल्ट वो सॉल्व होता रहता है. उसके लिए चाहिए रहता है प्रैक्टिस. समझता है क्या आपको? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट समझा आपने को? लिख के ले रहे हो क्या? पे लिखो फिर. क्या ऑलरेडी लिखा है? लिखो फिर. ये कैलकुलेशंस भले मैंने यहां पे 10 स्टेप में किए रहेंगे, 5 स्टेप में आप कितना फास्ट करना है कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है. बराबर है बच्चों? भाई मैं किसी पार्टी को रोस्ट नहीं कर रहा हूं भाई. मैं गरीब इंसान है, मैं बीवी बच्चे, मैं अपना कुछ तो करके महीने का महीने में खा के भाई घर चला रहा हूँ कैसे तो भी. मेरे में औकात तो है कि मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करूं. आपको दिखता नहीं क्या गरीब इंसान मेहनत करके खा रहा है? उसमें भी कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, फिर मेरा सैलरी कट होता है. कंज्यूमर कोर्ट में फिर कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा मुझे.
हो गया क्या भाई? अगला क्वेश्चन खुद कर रहे हो क्या सॉल्व फिर? करो कंप्लीट फिर, देखो होता है क्या। करे बच्चों अगला क्वेश्चन कंप्लीट। ये 33 हो चुका है क्या? ये ऑलरेडी अपन समझ रहे हैं ना? ये उसके बाजू में बस एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इसे आप फिर भी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, समझा ना? जिसके ऊपर 2 पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2। एंड हमने उस इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन लाया, यस और नो? जो फाइनल आंसर क्या आया बोलो? y2 जो अपन ने याद किया अभी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। ये आंसर तो याद किया, बट ये क्या है समझा ना? क्या है ये? उसके सामने लिखा है मैंने, देखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। क्लियर है बच्चों ये? अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कुछ दम है इसमें? बोलो क्या आंसर रहेगा? थोड़ा डिटेल लिखते हैं अपन। इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहे हो बच्चों, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, बोलो x1 कॉमा y1 एंड बोलो x2 कॉमा y2 इज क्या था बोलो? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। सही है क्या भाई? तो आप बताओ, अगर आपने को ये x1 y1 एंड x2 y2 ये 2 पॉइंट में से जाने वाले लाइन का इक्वेशन पता है, तो सिर्फ वहां पे x1 y1 x2 y2 की जगह पे कोई दूसरे 2 पॉइंट आए ना? कौन से 2 पॉइंट आए बोलो x1 y1 x2 y2 की जगह? बोलो ना बच्चों, p कॉमा q एंड बोलो m कॉमा n। तो आप x1 y1 की जगह p q लिख देना, x2 y2 की जगह बोलो एम एन लिख देना। हाँ बोलो फिर अभी y2 माइनस y1 क्या आएगा बोलो ना आप? बोलो n माइनस क्यू डिवाइडेड बाय y माइनस क्यू इज इक्वल टू बोलो m माइनस p डिवाइडेड बाय x माइनस p। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और आंसर लाना है, आप ला सकते हो, राइट? यू कैन कीप द आंसर एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा क्या? अब जब m q m n की जगह नंबर्स आएंगे तो बन जाएगा इक्वेशन ये। नहीं समझा नालायकों को? जब m n p q की जगह नंबर्स आएंगे तो बन जाएगा कि नहीं इक्वेशन ये? यस और नो? तो कोई भी 2 पॉइंट मैंने अगर आपको दिए तो कैन यू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू देम? 2 पॉइंट मैंने दिए तो वो 2 पॉइंट में से जो लाइन जाता है वो लाइन का इक्वेशन होता है, पॉइंट्स का इक्वेशन नहीं होता, समझा ना? 2 पॉइंट अगर मैंने दिए तो वो 2 पॉइंट में से जाने वाले लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन, ठीक है? नेक्स्ट, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू माइनस 8/5 x प्लस 33। क्या स्लोप है बोलो? माइनस 8/5 इज द स्लोप। कैसे? अच्छा सुनो ध्यान से, सब लोग अच्छे से सुनो। इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो, y इज इक्वल टू माइनस 8/5 x प्लस 33 दिख रहा है क्या आपको? तो बताओ, कंपेयर दिस विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c। m की जगह क्या है? माइनस 8/5 एंड m रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन क्या है? माइनस 8/5। कोई डाउट है? इसी इक्वेशन को मैंने कैसे लिखा बताओ? y इज इक्वल टू माइनस 8/5 x प्लस 33। सुन रहे हो क्या? यस और नो? फिर वो 33 को लेफ्ट में लिया, 33 को लेफ्ट में लिया। देखो कैलकुलेशन, y माइनस 33 इज इक्वल टू माइनस 8/5 x। समझा क्या? फिर दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया बोलो? 5y माइनस 165 इज इक्वल टू माइनस 8x। तो माइनस 8x को लेफ्ट में ले लो तो क्या बन जाएगा? 8x प्लस 5y। वो 165 को भेज दो उधर,
इज इक्वल टू 165। तो इक्वेशन क्या है बोलो, 8x प्लस 5y माइनस 165 इज इक्वल टू 0। नहीं समझा आपको ये? अच्छा बताओ, कंपेयर दिस विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a कितना है 8, b कितना है 5, तो माइनस a बाई बी यूज करो, माइनस 8 बाय 5। तो ये क्यों लिखा मैंने समझा क्या? क्या ना इसे, ये मैंने कल ही सिखाया था आपको, दो बार सिखाया आपको। तो समरी ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अगर लाइन है तो उसका स्लोप क्या है माइनस a बाय बी। बट अगर अपन उसी इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो m क्या आएगा माइनस a बाय बी। मतलब m ही स्लोप रहेगा, m ही स्लोप रहेगा। तो इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 5 x प्लस 33। तो m की जगह क्या था माइनस 8 बाय 5। उसी इक्वेशन को मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड माइनस a बाय बी का वैल्यू लाया, क्या आया माइनस 8 बाय 5, जो क्या था इधर m, उधर माइनस a बाय बी। लेफ्ट में क्या है m, राइट में माइनस a बाय बी। है तो एक ही ना भाई, करेक्ट और नॉट? मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के अंदर, हाँ बोलो, जो क्या, जो माइनस a बाय बी आता है वही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m रहता है। समझा क्या? अच्छा जस्ट यहां पे जगह है और एक क्वेश्चन क्रिएट करते, चलेगा क्या? तुम मुझे बताओ कोई भी इक्वेशन y इज इक्वल टू, हाँ बोलो, जो बोलना है बोलो, आगे बोलो, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड बोलो। हाँ, माइनस 11 बाय 6 x, हाँ बोलो आगे, और माइनस 99। चलो, जो स्टूडेंट ने बताया वैसे लिखा कि नहीं मैंने? बोलो इस लाइन का स्लोप क्या है, जल्दी बताओ। स्लोप इज इक्वल टू माइनस 11 बाय 6, ये स्लोप है कि नहीं? हाँ चलो एक काम करेंगे, इसी इक्वेशन को ना बच्चों अपन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लाते हैं। हाँ चलो एक काम करो, दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई करो, हाँ करो फटाफट। 6y इज इक्वल टू माइनस 11x माइनस, बोलो 594, दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई किया 6 से। एक काम करो, सब कुछ लेफ्ट में लेके आओ, हाँ बोलो 11x प्लस 6y प्लस 594 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये जो लाइन है इज इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी? तो स्लोप क्या होता है माइनस a बाई बी। स्लोप क्या है माइनस 11 बाय 6। क्या आया, इतना रामायण करके भी तो वही आया ना। तो जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m होता है वही ax प्लस बी वाई प्लस सी में माइनस a बाई बी होता है। समझा क्या? हाँ भाई इधर हीरो, नहीं ये, अरे यार अपना क्लास का हीरो जो कंप्लीट नहीं, क्या स्कैन करता है जो धड़ाधड़। भाई तुम मतलब स्लोप कैसे बता सकते डायरेक्ट ना? अगला क्वेश्चन नंबर 37 का क्या आंसर है? डायरेक्ट आंसर दे दो ना यार, पढ़ने की क्या जरूरत है? 38 का 39 नहीं, थोड़ा रैम कम पड़ रहा है, फॉर्मेट करेगा? चलो हो गया क्या? गुस्सा है क्या भाई? गुस्सा बोला करो भाई, सॉरी बोल दूंगा, बोलने का भाई, बोलने का कि है हेलो सर्विस प्रोवाइडर, कंज्यूमर है इधर, कंज्यूमर इज द किंग, अपने अपने औकात में रहा करो, ऐसा बोलने का तुमने मुझे। चलो हो गए क्या? स्लोप इज माइनस 11 बाई 6 माई फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द लाइन kx प्लस 15y इज इक्वल टू 2x माइनस 93 इज माइनस 8 बाई 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब बताओ बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ दम है क्या यार? बोलो क्या इक्वेशन है बताओ आप? kx प्लस 15y माइनस 2x प्लस 93 इज इक्वल टू 0, वो इक्वेशन है ना? यस और नो? आप बोलो इज इट k माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 15y प्लस 93 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इक्वेशन कौन से फॉर्म में है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है क्या? तो आप बताओ, अगर ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है तो कंपेयरिंग दिस विथ,
आपको नहीं लग रहा कि ये सिर्फ मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूं ये? विथ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए कितना है? के माइनस 2। बी कितना है? 15। सी इज इक्वल टू कितना है? नहीं लिखा तो भी चलता है क्या? कोई लेना देना ही नहीं आपने को, क्योंकि स्लोप माइनस ए बाई बी होता है। नहीं समझा नाले को? तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? माइनस ए बाई बी। माइनस ए कितना है? के माइनस 2 बाई बी कितना है? 15। एंड उन्होंने खुद बोला है कि स्लोप इज माइनस 8/11। नहीं समझा आपको? उन्होंने खुद बोला है भाई स्लोप इज माइनस 8/11। आप बताओ ये इक्वेशन सॉल्व करके अपन के का वैल्यू ला सकते हैं क्या फिर? तो बोलो इज इट, बोलो 11 इंटू के माइनस 2 इज इक्वल टू 120। कैसे? माइनस माइनस कैंसिल हुआ, मैंने 11 इंटू के माइनस 2 किया एंड 15 इंटू माइनस 8 माइनस 120 जो था उसकी जगह प्लस 120 लिख दिया, या दोनों साइड में माइनस लिखो, क्या फर्क पड़ने वाला है? कैंसिल ही होने वाला है ना वैसे भी हो। तो टेल मी इज इट 11 के माइनस 22 इज इक्वल टू 120। तो 11 के इज इक्वल टू 142, के इज इक्वल टू 142 बाय 11। वैसे फ्रैक्शन में आंसर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप। 142 बाय 11 इज आंसर। क्या आंसर है? 12.90909090 इज आंसर। के का वैल्यू 12.909090। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इज द वैल्यू ऑफ के। 12.909090 is the value of k. Clear my friends? टफ है क्या ये? मैं आपको पहले भी बताया चैप्टर शुरू करने के पहले कि ये चैप्टर में आपको कई सारी चीजें बताऊंगा जो डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, आगे भी आपको हेल्प करेगा इंटर फाइनल में। समझ रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं कि भाई फाउंडेशन हो गए मतलब हो गए ना अपना सब, है नहीं। अपने को तो अल्टीमेटली पूरा सीए बनना है कि नहीं? Slope of the line 19x minus 33y plus 2ky is equal to 8x minus 930 is 11/8. Find the value of k. Can I say it's similar to previous question? करोगे कैलकुलेशन आप खुद? Bring this equation in the form of ax plus by. आराम से करो, कोई गड़बड़ है नहीं अपने। बोलो is it 19x minus 33y plus 2ky माइनस 8x प्लस 930 इज इक्वल टू 0। तो 19x माइनस 8x कितना आता है? 11x प्लस ब्रैकेट में बताओ क्या रहेगा? 2k माइनस 33 ब्रैकेट के बाहर y प्लस 930 इज इक्वल टू 0। यहां तक आए क्या आप लोग? हाँ, 2k माइनस 33 लिखो या माइनस 33 प्लस 2k लिखो, बात तो एक ही है ना। ब्रैकेट के अंदर माइनस 33 प्लस 2k लिखा या 2k माइनस 33 लिखा, बात तो एक ही है ना। यस और नो? तो आप बताओ वेदर दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप मुझे बताओ कंपेयरिंग दिस विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बोलो a का वैल्यू कितना है? 11। b का वैल्यू कितना है? 2k माइनस 33। तो बोलो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ए बाय बी। तो इज इट माइनस 11 बाय बी कितना है? 2k माइनस 33। एंड उन्होंने स्लोप अपने को क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि स्लोप इज 11/8। कितने लोगों को समझाए? ये सॉल्व करके k का वैल्यू लाना कोई बड़ी बात है क्या? तो बोलो मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आएगा जल्दी बताओ। वैसे तो 11 कैंसिल होता है, समझ रहे हैं ना आपको? ये -1 रह जाएगा, बट ठीक है चलो। 22k माइनस 33 इंटू 11 कितना आता है? 363 इज इक्वल टू -88। डू यू एग्री? तो 363 माइनस 88 का आंसर इज 275। देयरफॉर 22k इज इक्वल टू 275। तो k इज इक्वल टू कितना आ रहा है बता दो आप? 275 divided by 22. Answer is 275 divided by 22. Answer is 12.50. Yes or no? 12.50 is answer.
या 25/2 ऐसे बोल सकते हो आप, 25/2। यस और नो? टफ था भाई ये। तो क्या फॉर्मूला है स्लोप का, बोलो? -a/b। अगर इक्वेशन ax + by + c के फॉर्म में है तो स्लोप इज -a/b। कितने लोगों को यहां तक समझा है? ठीक है, नेक्स्ट 38। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। कहने से अपन थोड़ी देर पहले ऐसा ही फॉर्मूला डिराइव किए, कौन सा बोलो? y2 - y1। तो ये जो पहला पॉइंट है वो क्या है? पहला पॉइंट क्या है? x1 y1। दूसरा पॉइंट क्या है? x2 y2। तो आपको x1 y1 x2 y2 सबके वैल्यू पता है, इक्वेशन भी पता है, बस सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज एंड गेट द आंसर। यस और नो? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2, यू कैन गेट इट इजीली और नॉट? यस और नो? एक बार फिर भी मैं लिख लेता हूं, आप भी लिखो। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, बोलो, x1, y1 एंड x2, y2 इज, क्या इक्वेशन बोलो? y2 - y1 डिवाइडेड बाय y - y1 इज इक्वल टू x2 - x1 डिवाइडेड बाय x - x1। तो आप बताओ, ये अपना जनरल फॉर्मूला था। तो आप बताओ इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स कोई बड़ी बात है क्या भाई? बोलो क्या रहेगा? y2 - y1 बताओ जल्दी। 33 -12 डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलो, y - -12 इज इक्वल टू x2 - x1, जल्दी, 18 - 8 डिवाइडेड बाय y - 8 या x - 8? x - 8 सही है। तो बोलो 33 - -12 कितना आता है? 45। तो 45 इंटू x - 8, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ क्या? 18 - 8 कितना आता है? 10 इंटू y + 12। कितने लोगों को ये स्टेक तो समझा? बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बताओ। 45x - 360 माइनस ना, इज इक्वल टू 10y + 120। तो इज इट 45x - 10y इज इक्वल टू प्लस 480 आएगा ना, माइनस होगा, इज इक्वल टू 480 रहेगा ना। अच्छा, अगर ये 45x - 10y एक साइड में लिया -480 तो इज इक्वल टू 0 आएगा। और सिंप्लीफाई होता है क्या कुछ? 5 से डिवाइड करते हैं सबको। हाँ बोलो, 9x - 2y - 96 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई होता है क्या? नहीं। अच्छा, ये इक्वेशन पूछा तो इक्वेशन लाया हमने, इसका स्लोप पूछा होता तो क्या आंसर था? 9/2 -9/2 नहीं भाई, 9/2। अब देखते ही समझना चाहिए यार। अभी -a/b का वैल्यू क्या? 9/2 आएगा या -9/2 आएगा? 9/2 सही है। इसका स्लोप पूछा तो आंसर क्या है? 9/2। मतलब अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई ये 2 पॉइंट में से जाने वाले लाइन का स्लोप पता करो, तो वो भी कर सकते हो ना आप। अरे तुम इक्वेशन ला सकते हो तो स्लोप नहीं ला सकते क्या? इक्वेशन लाया तो ये इक्वेशन आया तो उसका स्लोप क्या होता है? -a/b इस पे अप्लाई किया तो स्लोप भी आएगा ना, आएगा कि नहीं? क्या हो रहा है आज? दिमाग चल नहीं रहा है क्या? आज दिमाग कहीं और है, ऑक्युपाइड नहीं? टेंशन नहीं कुछ? तुम्हें क्या वैसे क्या फर्क पड़ता है ऐसे कौन जीतेगा, कौन किसकी गवर्नमेंट बनेगी? वैसे रियल टर्म्स में फर्क है, बाकी इमोशन छोड़ो। रियल टर्म्स में तुम्हारा कुछ मार्केट में पैसा लगा है, तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ ह्यूज ऐसा जिससे पूरा, हाँ मैं डीमैट अकाउंट ओपन किया उसमें 3000 है, वो छोड़ो। समझा या नहीं? ऐसा कुछ बहुत बड़ा स्टेक लगा है उसमें कुछ नहीं ना, तो फिर बट इसमें स्टेक लगा है बहुत, या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। करोगे क्या सॉल्व?
करोगे क्या सॉल्व? लाओ फिर आंसर, पूरा फॉर्मूला लिखो या डायरेक्ट आंसर लाए? अभी डायरेक्ट आंसर लाए। पहला पॉइंट क्या होता है वैसे? पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। समझता है ना बच्चों? ये बाद में उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा ना। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। चलो बोलो y2 माइनस y1 कितना आएगा? 80 माइनस माइनस 20 डिवाइडेड बाय y माइनस माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 1.50 माइनस माइनस 30 डिवाइडेड बाय x माइनस माइनस 30। क्या करना है अपने को? ये सॉल्व करके इक्वेशन ही लाना है ना बस। बोलो 80 माइनस माइनस 20 कितना आता है? 80 माइनस माइनस 20 कितना आता है? 100। एंड 100 इंटू क्या होगा? x प्लस 30 होगा कि नहीं? एंड उधर बताओ क्या होगा? माइनस 1.50 प्लस 30 इज इट 28.50 इंटू y प्लस 20। करो मल्टीप्लीकेशन। 100x प्लस 3000 इज इक्वल टू 28.50 y प्लस 570। सही है क्या? तो टेल मी, इज इट 100x माइनस 28.50 y प्लस 2430 इज इक्वल टू 0। सही है क्या? एक काम करते, चलो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते। क्या आया 2 से मल्टीप्लाई किया तो? 200x माइनस 57y प्लस 4860 इज इक्वल टू 0। नहीं समझा रहेगा शायद। दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया और कुछ सिंप्लीफाई होता है तो करो, नहीं होता है छोड़ दो। यही आंसर है। नहीं समझा आपको? या दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया भाई, है कि नहीं? हाँ भाई। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। तुम बोलो किससे मल्टीप्लाई करना है? वो 28.50 है ना फ्रैक्शन में, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए किया। तुम बोलो तुम्हें 2 पसंद नहीं हो, अपना और किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या? एक तुम्हें 2 पसंद नहीं, क्या एक आधा नंबर पसंद है वो बोलो। 10 पसंद है, 10 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा बोलो? 1000x माइनस बोलो 285y प्लस बोलो 24300 इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड को 5 से डिवाइड करो, वापस वही आएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड हुआ, मतलब अल्टीमेटली 2 से ही मल्टीप्लाई हुआ। नहीं पसंद नहीं 10 भी? तुम बोलो तो और 20 से मल्टीप्लाई कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10 से डिवाइड करेंगे, आएगा वही, सिंपलेस्ट फॉर्म वही है। समझा क्या आपको? बोलो तो द आंसर इज 200x माइनस 57y प्लस 4860 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सही है भाई? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड और क्या क्वेश्चन पूछा है? ऑल्सो फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन। थोड़ा बच्चों एक काम करो, मेरे साथ सॉल्व करो। अच्छा इक्वेशन ऑफ द लाइन तो अपन 2-3 क्वेश्चन ऐसे बैक टू बैक सॉल्व किए क्या सेम, बट बाद में क्या बोल रहे हो? स्लोप। सुनो तो बच्चों प्लीज, बाद में लिखो आराम से। अंडरस्टैंडिंग को इंपॉर्टेंस है, कभी भी बुक कंप्लीट करना सेकेंडरी है। वैसे भी हर पेज का सॉफ्ट कॉपी आपके पास होता है, बाद में होता है कि नहीं बताओ? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड ऑल्सो फाइंड द स्लोप। तो चलो अपन अभी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, y2 माइनस y1। चलेगा क्या? कौन सा था वो बोलो? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। ये क्या है भाई? इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 x2 y2। चलो बोलो, आप बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलो मुझे, y2 माइनस y1 क्या आएगा जल्दी बताओ? 20 माइनस माइनस 5, 20 प्लस 5 करो क्या उसको? डिवाइडेड बाय y प्लस 5। सही है क्या?
बोलो -11 -2 डिवाइडेड बाय x -2. डू यू एग्री? 20 + 5 कितना आता है? 25. 25 से मल्टीप्लाई करो इधर. 25x - 50. इधर -11 -2 कितना आता है? -13. -13 से मल्टीप्लाई करो. -13y -65. तो चलो एक साइड में ले लो. 25x + 13y = -15 या +15 = 0. यस और नो? चलो +15 = 0. इज इट इक्वेशन ऑफ द लाइन? किसका इक्वेशन है? किसका इक्वेशन है? आप बोलोगे सर ये इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, -5 एंड -11, 20. मतलब अगर ये दो पॉइंट अपन ने ग्राफ पे प्लॉट किए एंड उन दोनों में से जाने वाला लाइन निकाला तो वो लाइन का ये इक्वेशन है. समझा या नहीं? एंड अब बताओ अगर ये इक्वेशन है ही तो उसका स्लोप पता करना कोई बड़ी बात है क्या भाई? तो क्या स्लोप ऑफ द लाइन है? -25/30. समझा क्या? ये क्वेश्चन अपन सॉल्व किए. उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू 2 पॉइंट्स एंड वो दो जो पॉइंट्स है उसमें से जाने वाली लाइन है उसका इक्वेशन निकालो, उसका स्लोप फाइंड करो. तो दोनों कर दिया क्या हमने? बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने का अपने पास और एक तरीका है. आपको इजी लगा तो वो कर लेना बाद में, नेक्स्ट टाइम. चलेगा क्या बच्चों? सुन रहे हो क्या? मेरे पास और एक फॉर्मूला है और वो है स्लोप ऑफ द लाइन. क्या है बोलो? स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू. स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स. पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 is y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1. डायरेक्टली ये स्लोप मिल जाएगा अपने को. इक्वेशन लाया नहीं हमने. क्या लाया? स्लोप. स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. तो अब मुझे बताओ ऊपर का जो क्वेश्चन किया सॉल्व किया अपने, स्लोप ऑफ द लाइन, आप बताओ ऊपर के इक्वेशन में y2 - y1 बोलो क्या है? 20 - -5 डिवाइडेड बाय -11 -2. कितने लोगों को समझाए? y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 क्या आता है इसका आंसर बोलो? 25/-13 मतलब -25/13. इधर क्या था? स्लोप तो वही था. स्लोप मिल गया अपने को. अब आप बोल रहे सर स्लोप तो मिला, इक्वेशन कैसे मिलेगा? बताता हूं आपको. सुन रहे हो क्या? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन. अब थोड़ा सोचो. अब भगवान ने अपने को दिमाग दिया है. मुझे बताओ जो इक्वेशन ax + by + c होता है उसका स्लोप क्या होता है? -a/b. तो जिसका स्लोप -25/13 है उसका इक्वेशन क्या होगा? 25x + 13y. नहीं समझा नालायक को? 25x + 13y. अरे नालायक को, जिसका इक्वेशन ax + by होता है उसका स्लोप क्या होता है? -a/b. तो जिसका स्लोप -a/b है उसका इक्वेशन क्या है? ax + by. तो जिसका स्लोप -25/13 है उसका इक्वेशन क्या होगा? 25x + 13y. आपको लग रहा है हाँ सर सही है, यहां तक सही है, बट इज इक्वल टू कहां से लाओगे? 25x + 13y. कहां इज इक्वल टू लाना? कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई? मुझे इस लाइन के 2 पॉइंट्स पता है. तो इफ आई पुट x = 2 and y = -5, that equation should be satisfied. सोचो जरा. x = 2 and y = -5, that equation should be satisfied. तो 25 into 2 कितना आता है? 50 + 13 into -5 -65. 50 - 65 -15. नहीं समझा आपको? अरे नालायक को, 25 into x कितना है बोलो? 2 + 13 into -5. तो 50 - 65 क्या आंसर आया? -15. तो क्या इक्वेशन आया बोलो? इक्वेशन क्या आया? 25x + 13y बोलो 50 + 15 = 0 या -15 बोल सकते थे आप. कौन सा बेटर था, लेफ्ट वाला या राइट वाला? तो लेफ्ट में हमने पहले इक्वेशन लाया, बाद में स्लोप. उधर पहले स्लोप लाया और बाद में इक्वेशन लाया. आपको जो पसंद है वो कर लेना बाद में. समझा क्या? मेरे ख्याल से वो जो सेकंड राइट वाला बताया था वो बेटर है. 1 सेकंड में तो स्लोप आ जाता है उधर. अरे y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 स्लोप आया कदम. यस और नो? इधर स्लोप लाने के लिए पहले इक्वेशन लाना पड़ रहा है, तो यहां पे थोड़ा काम ज्यादा है ना. कुछ गया दिमाग में? अब आपको लग रहा है कि सर ये फॉर्मूला कहां से लाया अपन? अब ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था. सुनो एक मिनट, देखो दिखाओगे आपको.
ये देखो, ये पेज नंबर कौन सा पेज नंबर 254 पे दिख रहा है क्या आपको? ये पढ़ो, इक्वेशन 5 क्या था? क्या था? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज m। m क्या था? स्लोप। m क्या था? स्लोप। और क्या आया था? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। प्रूव किया था ये हमने, बस यहां पे यूज किया हो। समझा या नहीं? अगर बाद में जिंदगी में कुछ ज़्यादा एम्बिशंस नहीं तो चिल्लर क्वेश्चन, चिल्लर कंसेप्ट सीख के खुश रहा करो। बट अगर कुछ समझ रहा है क्या, बड़ा काम करना है तो भाई समझना पड़ता है। ज्योमेट्री ये वो जो अपने सिलेबस में नहीं है, आ सकता है, अपने को फ़ायदा कर सकता है, अपने को एग्जाम्पल में मदद हो सकती है, सब करने का। अपन स्टूडेंट है ना स्टूडेंट? गुड। कंज्यूमर भी है साथ साथ में। टू 290 पे हैंग हो गई बीजेपी। भाई देख, बीजेपी का कुछ भी हो, अपने को कम से कम 200 पार करना पड़ेगा। है कि नहीं? उनका क्या है, 2-4 करोड़ में एक आधा एमपी आ जाता है। अपने को नहीं आता ना भाई। अपने माँ बाप के बारे में अपने को ही सोचना पड़ेगा, है या नहीं? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। समझ रहे क्वेश्चंस कुछ? करें अगला क्वेश्चन सॉल्व। क्या क्वेश्चन है बताओ? फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। सुनो बच्चों, अभी साथ में सॉल्व करेंगे हम लोग। दोनों मेथड से करेंगे, एक से करेंगे? अभी दोनों से करेंगे इस बार भी, चलेगा? बट पहले वो इजियर मेथड से करेंगे, चलेगा क्या? जो अपने को पसंद आया था वो मेथड से पहले करेंगे, चलेगा क्या? हाँ चलो, डायरेक्ट स्लोप बताओ मुझे। चलो स्लोप, हाँ बोलो। 85 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 20। कितने लोगों को समझाए? कौन सा फॉर्मूला यूज किए वो भी बता दो। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सही है? बोलो 85 माइनस 28 कितना आता है? 57 डिवाइडेड बाय 10। तो 57 डिवाइड बाय 10 स्लोप है क्या? तो बताओ, 57 डिवाइडेड बाय 10 स्लोप है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन 57x माइनस 10y रहेगा या प्लस 10y रहेगा? माइनस 10y। कितने लोगों को यह समझा? अच्छा, 57x प्लस 10y कब होता? अगर स्लोप माइनस 57 बाय 10 होता तो? नहीं समझाना लायक को। अच्छा मुझे बताओ, 57x माइनस 10y इज इक्वल टू कुछ भी रहने दो, उसका स्लोप तो 57 बाय 10 है ना। अब सिर्फ क्या सस्पेंस है? इज इक्वल टू हाउ मच? तो कैसे फाइंड करेंगे वो बोलो? 57 इंटू बोलो 20 माइनस 10 इंटू 28। अरे कोई भी एक पॉइंट आप लोग नहीं सर 30,85 लिखो, लिखो सेम आंसर आएगा। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो क्या आंसर है? 57x माइनस 10y। 57 इंटू 20 का क्या आंसर है? 1140 माइनस 280 इज इट 860? तो टेल मी माइनस 860 इज इक्वल टू 0। सामने वो प्लस 860 था, इधर आके माइनस 860 हुआ। तो अपन ने पहले स्लोप लाया या इक्वेशन लाया? स्लोप एंड फिर इक्वेशन लाया। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को समझाई? अच्छा मुझे बताओ, मैंने x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 28 लिखा है, उसकी जगह x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 85 करके देखो, सिर्फ चेक करो टैली होता है क्या, वो भी इज इक्वल टू 860 आता है क्या?
x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 85 मैंने किया होता तो भी आंसर सेम आता है कि एक बार चेक तो करके देखो, आता है क्या? आता है क्या भाई? चलो पहले यहां पे स्लोप लाया, बाद में इक्वेशन। अच्छा इसी क्वेश्चन को अपन और एक बार सॉल्व करेंगे, और करेंगे क्या बच्चों? हाँ क्या करूं बताओ अभी मुझे। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। बोलो y2 माइनस y1, 85 माइनस 28 डिवाइड बाय y माइनस 28 इज इक्वल टू 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 20। दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन या स्लोप ऑफ द लाइन? इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बोलो 85 माइनस 28 कितना आता है? 57 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस 28। इज इट 57x माइनस 1140 इज इक्वल टू 10y माइनस 280। सही है क्या भाई? तो टेल मी, इज इट 57x माइनस 10y इज इट इक्वल टू 860? नहीं समझा आपको? तो सेम इक्वेशन आया क्या? सेम इक्वेशन आया क्या? तो आप बताओ, अगर ये इक्वेशन आया तो स्लोप 57/10 है, इसमें कोई डाउट है आपको? इक्वेशन आया तो स्लोप भी मिल जाएगा ना भाई? तो आप बताओ कौन सा मेथड इजी गया? वैसे कोई दोनों इजी है, समझा या नहीं? बट उसमें भी फर्स्ट वाला ज्यादा इजी है क्योंकि उसमें स्लोप तो पहले सेकंड में आएगा। यस और नो? इनफैक्ट कैल्सी पे डायरेक्ट स्लोप आ जाएगा ना पहले तो, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय y माइनस y1। सही है भाई? एंड जो कुछ घर जाके आधा घंटा पढ़ता है, 40 मिनट पढ़ता है, उसके दिमाग में पूरा कंसेप्ट छपा हुआ रहता है भाई। एंड तुम बोलोगे नहीं जो नहीं होता है, मतलब तुम पढ़ते नहीं हो। तुम बोलोगे नहीं हम पढ़ते तो, एंड फिर भी नहीं आ रहा है तो तुम झूठ बोल रहे हो, है कि नहीं? या खुद को चीट कर रहे हो। हो गया भाई? अगला क्वेश्चन कर रहे हो क्या सॉल्व? फिर फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। दोनों मेथड से करेंगे, एक से करेंगे? अभी एक से करेंगे, बस हो गया, चलेगा ना? पहले स्लोप पता करो, बाद में इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 42 करो, खुद कंप्लीट करो, मैं वेट करो आपके आंसर का। हो गया? गुड, वेरी गुड। क्या स्लोप है? 1/50 1/15 स्लोप है। तो इक्वेशन रहेगा x माइनस 15y इज इक्वल टू समथिंग। Okay, question number 42. Slope of the line passing through these 2 points is 35 minus 18.50 divided by minus 27 minus 1.50. यहां तक समझा क्या आपको? 35 minus 18.50 का आंसर क्या आता है? 16.50 divided by minus 28.50. तो टेल मी, दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इज इट 165 डिवाइड बाय माइनस 285? सही है क्या? दोनों को 5 से डिवाइड करो तो बोलो क्या आता है? 5 से करो ना डिवाइड बच्चों। 33 बाय कितना? 57। और कुछ डिवाइड होता है क्या बताओ आप दोनों को? 3 से डिवाइड होता है, तो बोलो क्या आएगा ये? 11 डिवाइडेड बाय माइनस 19। अच्छा 11 बाय माइनस 19 बोलो या माइनस 11 बाय 19 बोलो, बात तो एक ही है ना? यस और नो? कुछ जाता है क्या दिमाग में? 11 बाय माइनस 19 बोलो या माइनस 11 बाय 19 बोलो, बात तो एक ही है कि नहीं? अच्छा सुनो सुनो प्लीज प्लीज, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहेगा, एक मैं वो भी निकाल देता हूं अभी।
देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन, सुनो तो बच्चों प्लीज, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन, मुझे बताओ -11/19 स्लोप है, मतलब इक्वेशन 11x + 19y होगा। प्लीज सुनो तो बच्चों, अब इज इक्वल टू क्या रहेगा, राइट उसके लिए तुम कोई भी एक पॉइंट यूज करो, मतलब 1.50 एंड 18.50 या -27 एंड 35। तो एक काम करते हैं, वो सेकंड वाला यूज करते हैं। हाँ बोलो, 11 इंटू -27 प्लस 19 इंटू 35, देयरफॉर इक्वेशन क्या आएगा बताओ, 11x प्लस 19y इज इक्वल टू, हाँ बोलो कितना था वो, 19 इंटू 35 मेमोरी प्लस 11 इंटू 27 मेमोरी माइनस, कितना रहा, इज इक्वल टू 368, इज इक्वल टू 368 आ रहा है क्या? कितने लोगों को ये समझा बच्चों? अरे भाई स्लोप -11/19 था, तो इक्वेशन 11x + 19y रहेगा कि नहीं? अब कुछ लोगों को ये एक डाउट रह सकता है कि सर सुनो तो, स्लोप -11/19 है, स्लोप -11/19 है, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इज -11x - 19y इज इक्वल टू समथिंग। नहीं समझा आपको? अरे मेरे भाई इसका भी तो स्लोप -11/19 है, इसका भी तो स्लोप -11/19 है ना, है या नहीं? आपने 11x + 19y लिया था, बट इसका भी तो स्लोप -11/19 है। बोला था नहीं सर फिर अलग आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप बताओ -11x - 19y है कि नहीं? तो -11 इंटू एक पॉइंट यूज करो -27, समझा क्या? -19 इज इक्वल टू इंटू 35 है ना ये, तो इज इक्वल टू जो आएगा ना बच्चों वो -368 रहेगा। क्या रहेगा बोलो? -368। अरे वो -11 इंटू -27 प्लस हो जाएगा, वो उसे डिडक्ट हो जाएगा, -368 आएगा कि नहीं? तो अब बताइए इक्वेशन क्या आ रहा है, बोलो -11x - 19y इज इक्वल टू -368। तो क्या हुआ अल्टीमेटली इक्वेशन है क्या? 11x + 19y इज इक्वल टू 368। बात तो एक ही है ना भाई? नहीं समझ रहा है नालायक को, सुस्त बैठते रहते। इनके हाथ में मोबाइल दो, तुरंत चालू हो जाएंगे। 2 + 3 लिखा, हाँ दिमाग में कोरोना है तुम्हारे, बाकी कुछ नहीं। जेन जी सर, समझता है क्या कुछ कैलकुलेशन? कितने लोगों को समझाए? चलो आंसर इज 11x + 19y इज इक्वल टू 368। कुछ लोगों का तो ना मतलब अक्ल एंड एटीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, समझता है ना अपने को? अक्ल जितनी कम है एटीट्यूड उतना ही ज्यादा है। अक्ल एक्स एक्सिस को छू रही है ओरिजिन के पास, एंड एटीट्यूड ऊपर, समझ रहे कि नहीं? ऐसा ऊपर जा रहा है डायरेक्ट। अकल मतलब काउंट की तो आएगी 3 मिलीग्राम, एंड एटीट्यूड है कि नहीं? समझ रहा है क्या? है कि नहीं? एंड ऐसे देखते कैलकुलेशन 5/7 7 से मल्टीप्लाई किया। अरे एंड कुछ बोला तो बाद में हमको बोल रहा है, हम कंज्यूमर फीस दिए और हम, ऐसा बोलना खाए लोगों का है ना, बराबर है ना? चलो हो गया क्या ये पॉइंट नंबर 42 डन? क्या 43? फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a, b एंड c, d। आंसर ऑप्शन ए, d - b / c - a। ऑप्शन ए, आर यू श्योर? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अरे ऑप्शन ए एंड बी सेम ही है नालायक हो। सेम, d - b की जगह b - a सेम होता है।
अच्छा एक काम करो, ये पॉइंट बाद में लिखो, ये पहले लिखो, तो आप वो आंसर बोलते। बोलते कि नहीं? कुछ लोग कैसे सही मैं, अच्छा डी प्लस बी की जगह बी प्लस डी समझ सकता था, माइनस में भी। अच्छा डी माइनस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए, ये तुम्हारे हिसाब से आंसर था? एक काम करते हैं, दोनों को माइनस माइनस करते, चलेगा क्या? तो बोलो क्या आएगा ये, माइनस डी प्लस बी डिवाइडेड बाय माइनस सी प्लस ए। अनफॉर्चुनेटली उसको बी माइनस डी डिवाइड बाय ए माइनस सी ऐसे भी लिख सकते हैं। कमाल है ना? देखो अब इसका आंसर ऑप्शन ए टिक करके आए, आपको तो ले लिया ना ट्रैप में, बराबर है कि नहीं? और कितना खुशी खुशी जो आप ऑप्शन ए टिक करके आते, बोलते भाई कोई सोपा पेपर होता है कि नहीं? बाद में मार्क्स आने के बाद शक्य नहीं, ये मार्क्स मार्जिन आई है कि नहीं? पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? सब कुछ पॉसिबल है, तुम हो तो, है कि नहीं? चलो, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2k कॉमा माइनस 19 एंड 50 कॉमा माइनस 8 इज माइनस 16/3। स्लोप दिया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k बोला है। कैन आई से इट्स अ प्योर कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला पता है क्या अपने को? हाँ बोलो क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो लिख दो ना, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स बोलो? 2k कॉमा 19 एंड 50 कॉमा माइनस 8 इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? माइनस 8 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 2k। अपने फॉर्मूला के हिसाब से ये आंसर है क्या? एंड उन्होंने आंसर दिया है माइनस 16/3। अरे स्लोप उन्होंने खुद दिया है ना, बस ये सॉल्व करके के का वैल्यू लाना बड़ी बात है क्या? आप कुछ बोलो, इज इट माइनस 27 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 16/3। माइनस माइनस कैंसिल कर दूं क्या? चलता है क्या? ये माइनस को प्लस कर देता हूं, इसको भी प्लस कर देता हूं, ऐसे चलता है क्या? बोलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आ रहा है? बोलो 16 इंटू 50 माइनस 2k इज इक्वल टू 81। सही है भाई? ये अभी कैलकुलेशन में 4 5 6 स्टेप बना देता हूं, समझ रहा है क्या है? एक्चुअली एक स्टेप का काम है। बोलो 16 इंटू 50 कितना आता है? 800 माइनस 32k इज इक्वल टू 81। तो 800 माइनस 81 इज इट 719 इज इक्वल टू 32k। देयरफॉर k इज इक्वल टू 719 डिवाइडेड बाय 32 इज आंसर। 719 डिवाइडेड बाय 32 क्या आंसर है? 22.46875 इज आंसर। 22.46875 इज आंसर। टफ था ये। स्लोप ऑफ द लाइन, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा क्या आपको? अब देखो बच्चों, तो अगर आपने वो इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज किया भी होता बट स्लोप का फॉर्मूला भूल गए होते तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। फिर इसका इक्वेशन लाओ, फिर स्लोप, समझा या नहीं? डायरेक्ट स्लोप का फॉर्मूला पता रहता तो बेटर था कि नहीं? तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट, द लाइन्स, ओके, 2 इक्वेशंस दिए आपको, हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्यूशन मीन्स, लिखो उधर, सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्यूशन मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये ऐसा पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
अब ये बोल रहा है कि ये दो लाइंस को सॉल्यूशन ही नहीं है। वेरी गुड, मतलब वो पैरेलल है। अच्छा पैरेलल है तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। हो गए ना यार, कुछ दम है क्या इस क्वेश्चन में? समझा या नहीं? तो लिखते, थोड़ा डिटेल लिखते, एज दीज टू लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन, हैव बोलो नो सॉल्यूशन, we can say that, we can बोलो say that, बोलो these two lines बोलो have same slope, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग? have same बोलो slope, मतलब एक तो या तो एक दो लाइंस पैरेलल है, बोलो ऐसा और क्या हो सकता है? या तो ये दो लाइंस, बोलो सुन रहे हो क्या एक मिनट, पैरेलल है, या ये दो लाइन कोइंसाइड करते। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर से ही दूसरा लाइन जा रहा है, नहीं समझा आपको? एक के ऊपर से ही दूसरा लाइन, समझो ये एक लाइन है एंड बिल्कुल इसके ऊपर से ही दूसरा लाइन जा रहा है, इसके ऊपर, ये तो यहां पे तो डिफरेंस है, तो समझा या नहीं आपको? उसके ऊपर से ही दूसरा लाइन जा रहा है, मतलब अब ये दो लाइन तो कोइंसाइड करते हैं ना, मतलब उनका दोनों का भी स्लोप सेम रहेगा ना, करेक्ट और नॉट? तो दे हैव नो सॉल्यूशन, मतलब या तो उनका बोलो वो पैरेलल है और दीज टू लाइंस कोइंसाइड। दोनों केस में इतना तो क्लियर है कि दोनों लाइन का स्लोप सेम रहेगा, यस और नो? तो दीज टू लाइंस हैव द सेम स्लोप, तो बोलो देयरफॉर स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। आप एग्जाम में ऐसे रफ में लिखेंगे ना, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, ऐसे सम एग्जाम में लिखेंगे ना रफ में। तो क्या है स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन? 8/3। व्हाट इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन? -7k/55। थोड़ा होता है क्या फास्ट? ये नहीं, तो बोलो क्या आ रहा है? -21k इज इक्वल टू 55 इंटू 8 कितना था? 440। देयरफॉर k इज इक्वल टू -440/21। ऐसे कैसे? वो 21 माइनस था ना, प्लस कैसे हुआ? अरे डिवाइड बाय -21 है, लिखो किधर भी भाई, है या नहीं? तो 440 डिवाइडेड बाय 21 का आंसर इज -20.9523809523, ऐसा कुछ आंसर है ऑप्शन में। -20.95 इतना भी रह सकता है, इज द वैल्यू ऑफ के। तब था ये। नेक्स्ट, दी लाइन्स have unique solution. The lines have unique solution. The lines 5x plus 11y is equal to 29 and kx plus 33y is equal to 810 have unique solution. Then अब आंसर बताओ मुझे ऑप्शन में से। लास्ट ऑप्शन है रॉन्ग क्वेश्चन। रॉन्ग क्वेश्चन, सोच के बताओ। द लाइन्स हैव यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब या तो वो पैरेलल है या कोइंसाइड है। पैरेलल है ऐसे दिमाग में रखो, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, तो वो हमने आंसर लाया था प्रीवियस क्वेश्चन का। अब ये बोल रहा है कि दीज टू लाइन्स हैव यूनिक सॉल्यूशन। बोलो, चलो मैं बताता हूं। अच्छा आप कुछ मत लिखो बच्चों प्लीज, आप मुझे बताओ व्हाट इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इस क्वेश्चन में? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या है? -5/11। व्हाट इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या है? -k/। अच्छा बताओ, अगर ये दो सेम रहेंगे तो वो लाइंस क्या रहेंगे? पैरेलल। अगर ये दो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन रहेगा तो वो क्या रहेंगे? बोलो दो लाइन पैरेलल। मतलब हाँ बोलो -11k इज इक्वल टू, बोलो -11k इज इक्वल टू -165। तो k इज इक्वल टू कितना आ रहा है? बोलो k इज इक्वल टू, तो अब मुझे बताओ k इज इक्वल टू 15 रहा तो ये लाइंस क्या है? पैरेलल। अब उन्होंने क्या बोला है? बोलो एज दीज टू लाइन्स, एज बोलो दीज टू लाइन्स हैव, हाँ बोलो
यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक बोलो सॉल्यूशन मीन्स, इट मीन्स दे बोलो हैव अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दे हैव अ बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, एंड जब इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे ना। अच्छा सुनो, समझो ये एक लाइन है, सुन रहे हो क्या बच्चों, दूसरा लाइन आया, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा ना, या ये लाइन इधर से जाएगा और वापस बोलेगा नहीं नहीं मुझे और एक बार इंटरसेक्ट करना है, इधर जाता हूं मैं, बहुत मजा आया इंटरसेक्ट करके। दो लाइंस एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे ना भाई, हां, दो कर्व्स के दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक्स में वगैरह पढ़ा रहेगा ऐसे कुछ, लेट्स से दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ऐसा रह सकता है, यस और नो। तो एमसी इज इक्वल टू एमआर दो जगह पे है, यस और नो। बट आप मुझे बताओ दो लाइंस का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही रहेगा ना यार, कैसे भी रहने दो, अनलेस दे आर पैरेलल, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही रहेगा ना। दो लाइन क्या और एक बार इंटरसेक्ट करने वाले क्या, नहीं, कोई चांस ही नहीं है ना। तो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन मतलब दे इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दे बोलो इंटरसेक्ट, एंड दे इंटरसेक्ट विद ईच अदर मतलब बहुत क्लियर है कि, सुन रहे हो क्या बच्चों, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर, तो k इज इक्वल टू 15 रहेगा तो दे आर पैरेलल, नहीं समझा आपको, k इज इक्वल टू 15 रहा तो दे आर पैरेलल, तो k का वैल्यू कुछ भी रहेगा 15 नहीं रह सकता, समझा या नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी, समझा क्या आपको ये। तो k का वैल्यू हम जानते हैं क्या, नहीं, बट हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि भाई k का वैल्यू 15 नहीं हो सकता, क्योंकि k इज इक्वल टू 15 रहा तो क्या होगा, पैरेलल है, बट हमें कंफर्म मालूम है कि वो पैरेलल नहीं है। दे हैव द सॉल्यूशन, यस और नो। सिर्फ ये यूनिक वर्ड की वजह से कंफ्यूज हो रहेगा आपको या नहीं। दे हैव द सॉल्यूशन मींस दे सॉल्यूशन रहेगा तो यूनिक ही रहता है ना, अरे सॉल्यूशन मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भाई, तो दे हैव द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या इनका, है, मतलब वो पैरेलल है क्या, नहीं है, अनपैरेलल नहीं है मतलब क्या, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, तो अगर k इज इक्वल टू 15 आया तो वो पैरेलल है, क्वेश्चन बोल रहा है वो पैरेलल नहीं है, मतलब k का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी होगा, 15 नहीं हो सकता, यस और नो, कुछ भी होगा 15 नहीं हो सकता, इज दैट क्लियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स, पक्का, ओके। लिखा क्या आपने, as these two lines have unique solution it means they have a point of intersection, and point of intersection है मतलब क्लियर हुआ कि स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज बोलो नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, सही है। तो k का वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 15, डू यू एग्री माय फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, इफ m1 इज स्लोप ऑफ वन लाइन, ध्यान देखिए बच्चों, और थोड़ी देर कंटिन्यू करना है बस अपने को, करेंगे ना। इफ m1 इज स्लोप ऑफ वन लाइन एंड m2 इज स्लोप ऑफ अदर लाइन, देन लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर व्हेन m1 इज इक्वल टू m2। कैन आई से ये ऑलरेडी पढ़ चुके अपन, यस और नो। नेक्स्ट सुनो, तो लाइन्स आर सेड टू बी ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब वो इंटरसेक्ट करते, ऑब्लिक मतलब इतना ही है कि वो पैरेलल नहीं है, ऑब्लिक यार समझता है कि आपको ये, वो इंटरसेक्ट करते, कौन से एंगल में इंटरसेक्ट करते पता नहीं है, बट दे इंटरसेक्ट। तो व्हेन लाइन्स आर सेड टू बी ऑब्लिक, बोलो व्हेन m1 इज, वेरी गुड, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, समझा क्या बच्चों। एंड दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब ऑब्लिक का ही एक केस है ना, वो इंटरसेक्ट करते हैं बट कौन से एंगल में, 90 डिग्री। तो वो परपेंडिकुलर तब रहते हैं जब m1 पता है क्या किसी को, इंटू m2 इज इक्वल टू आता है -1। आप लोग ऐसा ऐसे एक्चुअल में आपने कभी पढ़ा रहेगा तो ऐसे पढ़ा रहेगा, m1 इज इक्वल टू -1 बाय m2, m1 इज इक्वल टू -1 बाय m2, मतलब ही क्या हुआ, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1।
चलो वैसे अभी अपने को फाउंडेशन में लॉजिक जानने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता दूं आपको, 1 मिनट सुनो तो बच्चों, 1 मिनट समझो। ये एक तुम्हारा लाइन है, लेट्स से ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 समथिंग लाइक दैट, या समझो ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 90 है, समझो ये। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? तो अच्छा ये लाइन पॉजिटिवली स्लोप्ड है या निगेटिवली स्लोप्ड है? 2x प्लस 3y स्लोप -2/3 है, पहला हिंट ये था। यानी तुम अगर तुमको ये निगेटिवली स्लोप्ड है बोलने नहीं आता तो क्या किया इकोनॉमिक्स में, झक मारे फिर। बराबर है कि नहीं? ये निगेटिवली स्लोप्ड है, ऐसा ऊपर जाने वाला पॉजिटिवली स्लोप्ड रहता है, डिमांड नॉर्मली ऐसा रहता है, तो निगेटिवली स्लोप्ड यही रहता है, यस और नो? तो आप बताओ ये निगेटिवली स्लोप्ड है तो इसका स्लोप -2/3 है ना बच्चों? तो जो पॉजिटिव ये माइनस है तो जो ऊपर जाने वाला है उसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा, एंड ये निगेटिव है एंड दूसरा पॉजिटिव है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। नहीं समझा आपको? एंड ये अगर 2/3 से नीचे आता है तो ऊपर जाने वाला 3/2 ये स्लोप के साथ ऊपर जाएगा ना, उल्टा हो रहा है ना यहाँ पे XY, समझा क्या आपको ये? तो आप बताओ एक दूसरे को जो परपेंडिकुलर रहते हैं उनका एक का स्लोप अगर 7/8 है, दूसरे का क्या होगा 8/7, बट एक का +7/8 रहेगा तो दूसरे का -8/7 रहेगा, यस और नो? या पहले का अगर -7/8 रहेगा तो दूसरा 8/7 रहेगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहता है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या आता है बोलो? -1। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या आता है? -1। अब डायरेक्ट याद करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया है फिर भी। तो टेल मी, इफ m1 is slope of first line, m2 is slope of second line, when lines are said to be parallel, when m1 is equal to m2, when lines are oblique, when m1 is not equal to m2, when lines are perpendicular, when m1 into m2 is equal to -1, if product of slopes is -1, lines are perpendicular, if slopes are same, lines are parallel, and if slopes are not same, lines are oblique। यही पॉइंट बताया क्या मैंने टेक्सचुअल में? क्या बोला एक बार वापस बताओ? if product of slopes of two lines is -1, they are perpendicular, if slopes are equal they are parallel, if slopes are not equal they are oblique। बस यही था, समझा क्या आपको? ये लिख के लिया क्या आपने? Right, two lines are perpendicular if m1 into m2 is equal to -1, parallel if m1 is equal to m2, oblique when m1 is not equal to m2। चलो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताओ, सॉल्व करो सब लोग और फिर बताओ क्या आंसर बेटा? 161.5। ओके करो, बाकी लोग भी सॉल्व करो। दो लाइंस दिए मैंने एंड ये भी बोला कि ये दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलो आप बताओ, कैन आई से एज दीज टू लाइन्स आर, क्या है बोलो? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एज दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप बताओ, कैन आई से स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इनटू, बोलो मेरे भाई, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू -1। यही फॉर्मूला है ना अपना, m1 इंटू m2 इज -1। आप बताओ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन? 3/19। व्हाट इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन? -2k/51 इज इक्वल टू -1। टेल मी, इज इट -6k डिवाइडेड बाय 51 इंटू 19 कितना आता है? 969 इज इक्वल टू -1। तो टेल मी, इज इट 6k इज इक्वल टू 969? तो 969 डिवाइड बाय 6 का क्या आंसर है बोलो? k इज इक्वल टू 161.50 इज द वैल्यू ऑफ k।
टफ था भाई ये, दो लाइन परपेंडिकुलर रहा तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 आएगा। टफ था ये, आज बहुत खतरनाक कुछ पढ़ रहे हैं ना अपन। हाँ बेटा, समझ में आ जाता है क्या? पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा बहुत लगेगा उस समय पे टफ लग रहा है, अपन पढ़ पढ़ के उसको आसान बनाना पड़ेगा ना अपने को, या पढ़ने का ही नहीं हो। कुछ लोग तो नहीं सर हमको क्लास में थोड़ा भी टेंशन नहीं आना चाहिए, तो काम भी चिल्लर ही होगा। फिर बड़ा काम करने के लिए स्ट्रेस लगता है, कुछ 90-95 मार्क्स लाना है, कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो बिना स्ट्रेस के नहीं होगा ना। कुछ लोगों को नहीं सर बिना स्ट्रेस के लाना है मुझे, नहीं होता है ना भाई। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा है कि जहां पे बहुत आउटकम जबरदस्त है, स्ट्रेस कुछ भी नहीं है? वो लोग नहीं सर कल मूवी बनाएंगे, देखो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस कितनी मजा करते, ऊपर से पैसा भी कमाते, आपको लगता है स्ट्रेस नहीं रहेगा? हाँ, कुछ भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। अच्छा ये सिंगर, क्रिकेटर्स, अच्छा बिजनेसमैन, कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा ना। अंबानी तो मस्त ऐसा हमेशा मतलब इसमें रहता है ना, कुछ नहीं, घर पे पड़ा रहता है, बस आराम टीवी देखता रहेगा, बराबर है ना। और कुछ भी करना है, थोड़ा बहुत एक आपको लगता नहीं सर स्ट्रेस लिए बिना कैसे कंप्लीट होता है? स्ट्रेस लिए बिना कंप्लीट करना है तो कंसिस्टेंटली करने का, बिना स्ट्रेस लेके 2 घंटे पढ़ने का, 2.5 घंटे पढ़ने का, तो फिर वो आगे का स्ट्रेस कम होता है कि नहीं? क्लास में अपने को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट, थोड़ा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखना पड़ेगा, है कि नहीं? ये मरी हुई शक्ल कम करना पड़ेगा, सुस्त एटीट्यूड कम करना पड़ेगा, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ये इससे बाहर आना पड़ेगा मरी हुई शक्ल से, या नहीं? ऐसे बैठने का है लाचार फीलिंग। 3/2 आंसर आ रहा है बच्चों, स्लोप ये वो ऐसा वैसा, m1 इंटू m2 -1, m1 इज इक्वल टू m2 ऑब्लिक पैरेलल परपेंडिकुलर। सुन बोलता रहेगा चुपेट भाई, है कि नहीं? इतने सुस्त है यार कुछ लोग। चलो पॉइंट नंबर 49 कंप्लीट करेंगे क्या आज? चलो 49 और 50 इतना कंप्लीट करते हो गया आज का लेक्चर। स्लोप ऑफ द लाइन मैंने दिया हुआ है यहां पे आपको ना बच्चों, उसके पैरेलल लाइन का स्लोप बताना है एंड उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताना है। चलेगा क्या? चलेगा क्या? तो आप बताओ, एक लाइन का स्लोप है 3/5, तो आप मुझे बताओ उसके पैरेलल लाइन का स्लोप क्या रहेगा? पैरेलल लाइन का स्लोप क्या रहेगा? बोलो। सेम ही रहेगा। एंड परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या रहेगा? -5/3। कितने लोगों को ये समझा? गुड, वेरी गुड। -8/9 स्लोप है। पैरेलल लाइन का स्लोप -8/9, परपेंडिकुलर का स्लोप 9/8। मतलब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होता है, सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, रेसिप्रोकल अपोजिट इन साइन। रेसिप्रोकल अपोजिट इन साइन, ताकि प्रोडक्ट -1 हो जाए। रेसिप्रोकल लिया मतलब प्रोडक्ट 1 होगा, अपोजिट इन साइन कर दिया मतलब प्रोडक्ट -1 होगा। एंड पैरेलल के केस में तो कुछ नहीं, पहला कॉलम उठा के बस लिख दो अपोजिट, क्योंकि पैरेलल लाइन के केस में स्लोप तो सेम ही रहता है। चलो नेक्स्ट बोलो। 8 एंड -1/8, सही है क्या? चलो नेक्स्ट बताओ। स्लोप -11 एंड इधर 1/11। नेक्स्ट 33/8। नेक्स्ट -8/33। नेक्स्ट -p/q। नेक्स्ट q/p, सही है क्या? चलो नेक्स्ट p - q डिवाइडेड बाय r एंड परपेंडिकुलर का r डिवाइडेड बाय q - p। नहीं समझता आपको? r डिवाइड बाय ऐसे करो, माइनस करके ब्रैकेट में लिखो p - q, मतलब भी q - p ना यार, समझा क्या? नेक्स्ट बोलो। 0 एंड इधर अनडिफाइंड, समझा क्या आपको? सिंपल लॉजिक बताओ इसका। अगर एक लाइन का स्लोप 0 है मतलब वो या तो x एक्सिस है या पैरेलल टू x एक्सिस है। अरे 0 स्लोप है भाई, तो उसको परपेंडिकुलर जो रहेगा वो या तो y एक्सिस रहेगा या y को परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब उसका स्लोप क्या रहेगा? अनडिफाइंड। नेक्स्ट अनडिफाइंड के पैरेलल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड एंड परपेंडिकुलर का
0। अब वो प्रोडक्ट का -1 होगा, ये लॉजिक बंद करो अभी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को पैरेलल है, वो नहीं समझा आपको। 0 के साथ प्रोडक्ट कुछ भी करो -1 नहीं आने वाला है, समझा या नहीं? चलो नेक्स्ट, 3/91 आंसर दो। 3/91 यानी तो क्या आएगा? -91/3। डू यू एग्री? आज का लास्ट क्वेश्चन, इतना सॉल्व करो बस खत्म। दी लाइन्स आर परपेंडिकुलर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, एज दीज टू लाइन्स आर perpendicular to each other, as these two lines are perpendicular to each other, slope of first line into slope of second line, slope of first line into slope of second line is equal to -1. Slope of first line into slope of second line is equal to -1. बोलो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन कितना है? 18/m। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या है? 51/28 इज इक्वल टू -1। तो 18 इंटू 51 कितना आता है? 918 इज इक्वल टू -28m। सही है क्या? Therefore m is equal to -918/28। सही है क्या बच्चों? तो दोनों को 2 से डिवाइड करो, तो 91 या 4 से होता है, 2 से करो, डिवाइड बाय 2 कितना आता है ये बोलो? -459/14। यस और नो? इसका क्या आंसर है? m इज इक्वल टू, फ्रैक्शन में बताना है तो -32.7857142.857 इज आंसर। परपेंडिकुलर है मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप शुड बी -1। चलो बच्चों समझे यहां तक? रिवाइज करके आओगे? रिवाइज करोगे क्या? चलो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो।